Good morning, student. Today in Business Studies, class 12th. Today in this video, let me explain you the another very important topic of chapter Financial Management. Our today's topic is working capital. Okay. So in previous video, I explained you about fixed capital and its factor affecting and other requirements we look out before deciding how much fixed capitals we required. Okay. Now in this video, let me explain you working capital. So working capital refers to the capital required for day-to-day working of an organization. तो वर्किंग कैपिटल ऐसी कैपिटल है जो में हर दिन जो एक्सपेंडिचर हमारे रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है. अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एज फिक्स्ड एसेट्स, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इन्वेस्ट इन करंट एसेट्स विच कैन बी converted into cash or cash equivalents within a period of 1 year. Okay. So apart from the investment, जो हमारा फिक्स एसेट्स है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है. बट अगर हम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की बात करें जो कि हमारा करंट एसेट्स है वो हमारे डे टू डे के खर्चे में ईच एंड एवरी टाइम वी रिक्वायर्ड. ओके. विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year, हाउ मच वी invest in our business, that comes in working capital. They provide liquidity to the business. Okay, ये हमारे बिजनेस को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है. लगातार जो हमारे खर्चे होते हैं, कैश का जो हमें रिक्वायरमेंट होता है वो हम फुलफिल करते हैं अपने वर्किंग कैपिटल से. ओके. सो दे प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बिजनेस वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल. Fine. So investment in all the current assets is called the gross working capital. तो जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होता है जो करंट एसेट्स के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं दैट कम्स इन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. उसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं. वेयर एज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, जहाँ पे हमारे करंट एसेट्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अवर करंट लाइबिलिटीज इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल. So following are the some factors which affect the working capitals are these. Okay. Let me explain you once more. Working capital is that particular capital which we require to fulfill our day-to-day necessities, expenditure for the firm, and it is broadly be divided into two parts. One is gross working capital and another one is net working capital. So you just keep in your mind the formula how to find out the gross working capital and net working capital. Fine. Now first of all let me explain you the factor affecting working capital. What are the factors we have to look out at the time when we require working capital for an organization. So first of all, nature of business. A trading organization needs a lower amount of working capital as compared to a manufacturer organization, as trading organization undertakes no processing work. Okay. So अगर हम नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें जैसे कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे हमें वी रिक्वायर्ड लोअर working capital because we are dealing with the trading business. Okay. So as trading organization undertakes no processing work, तो लगातार इसमें ज़्यादा ऐसी कोई प्रोसेसिंग नहीं होती. तो that's why we not need a huge amount at the time in working capital if we are related with the trading organizations. Second, scale of operation. So an organization operating on large scale will require more inventory. ओके. जितना ज़्यादा हमारा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑपरेटिंग टाइप ऑफ बिजनेस होगा, वहाँ पे हमें ज़्यादा सेल की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट होगा. सो इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर. तो वहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. ओके. नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल. सो
in this time of boom, more production will be undertaken and so more working capital will be required during that time as compared to depression. So in previous videos also I told you the market situation. Boom is the particular situation where product manufacturer have enough capital to produce the goods and the customer have enough income level. They have the good capability to परचेज द थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. तो ये बूम का सिचुएशन होता है जिसमें प्रोड्यूसर भी लगातार प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो यहाँ पे हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका भी सरप्लस में इनकम चल रहा है, मतलब पर कैपिटल इनकम बहुत अच्छा रहता है. तो ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्शन लेवल हाई करने के लिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द टाइम ऑफ डिप्रेशन का वो टाइम होता है जहाँ पे आपको प्रोडक्शन कम करना पड़ता है क्योंकि मार्केट में डिमांड इतनी नहीं होती कॉमोडिटी की, ठीक है. नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर्स. सो ड्यूरिंग पीक सीजन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल बी हाई, ठीक है. फॉर एग्जांपल अभी विंटर है तो विंटर में जो वार्मर क्लॉथ्स हैं उनका डिमांड बढ़ जाता है, तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है फॉर दोज इंडस्ट्रीज हु आर प्रोड्यूसिंग वार्मर टाइप ऑफ क्लॉथ्स, ओके, एज कम्पेयर टू द लीन सीजन. तो जो लीन सीजन है व्हेन द डिमांड इज लो एट दैट टाइम दे नीड लेस वर्किंग कैपिटल, ओके. सो इट इज कॉल्ड सीजनल फैक्टर्स. अनदर वन क्रेडिट अलाउड. If credit is allowed by a concern to its customer, then it will require more working capital. But if the goods are sold on cash basis, then less working capital is required. Okay, when you are providing credit facility to our customer, मान लीजिए कोई आपका ग्रोसरी शॉप है, वो आपका रेगुलर बेसिस पे गुड्स को परचेस करते हैं एंड देन दे सेल फ्रॉम देयर शॉप्स, बट अगर वो क्रेडिट फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर को, इन दैट कंडीशन ही हैज़ हैविंग लेस वर्किंग कैपिटल, उसके पास कम पैसा सबमिट होगा, जमा होगा. तो ऐसी कंडीशन में दे फ्रॉम वेयर दे विल परचेज द गुड्स, ओके. तो ऐसी कंडीशन में उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है एट द टाइम व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू द कस्टमर्स, ओके. नेक्स्ट, क्रेडिट एविल्ड, or we can say when we are providing credit facility. So if a firm is able to purchase raw material on credit from its supplier, जहाँ पे जो businessman है परचेस करता है मटेरियल को क्रेडिट पर, उधारी पर अपने सप्लायर से, देन लेस वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायर्ड. उस समय उसको वर्किंग कैपिटल का कम रिक्वायरमेंट होता है. एंड व्हेन द बिजनेसमैन इज परचेजिंग द रॉ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कैश, सो एट दैट टाइम ही नीड मोर वर्किंग कैपिटल, ओके. नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई हम कह सकते हैं. सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो डिटरमाइन द प्राइस लेवल चेंजेस, ठीक है. जो वर्किंग कैपिटल है वो हम इस पर भी डिपेंड करता है कि किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस लेवल क्या है. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल वेजेस ऑल्सो रेज रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा हुआ है, तो एट दैट टाइम वेजेस का भी प्राइस बढ़ जाएगा और फॉर दिस इट रिजल्टेड इट इंक्रीजिंग इन वर्किंग कैपिटल ऑल्सो, ठीक है. लास्ट, ऑपरेटिंग साइकिल टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल. सो टर्नओवर मीन्स स्पीड विथ विच द वर्किंग कैपिटल इज कन्वर्टेड इनटू कैश बाय सेल ऑफ गुड्स. एक हम ऐसा टर्नओवर की बात करते हैं जिसमें आप यू कन्वर्ट्स द कॉमोडिटी कन्वर्टेड इनटू द कैश, जहाँ पे आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है कैश में बाय सेल ऑफ एनी गुड्स. जब आप किसी गुड्स को सेल करते हैं, इंस्टेड ऑफ यू आर गेटिंग द कैश, दैट कम्स इन अ टर्नओवर, ओके. तो उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है. इफ इट इज स्पीडर द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड विल बी लेस. जहाँ पे आपकी लगातार आपने गुड्स बनाया और वो मार्केट में पहुँचता है, सेल हो रहा है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी. लेकिन अगर उसका सेल नहीं हो पा रहा है तो आपकी वर्किंग कैपिटल वहाँ पे कम यूज़ होती है, ओके. सो दिस मच इज़ अबाउट वर्किंग कैपिटल एंड आई टोल्ड यू द फैक्टर अफेक्टिंग पॉइंट ऑल्सो. सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड ऑल दीज पॉइंट्स, एंड इफ यू फाउंड एनी प्रॉब्लम इन एनी पॉइंट you have to read out from your NCERT book and from your refresher, okay.
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा.